Good morning, friends. Welcome to all of you in the Mangnare biology classes. Myself Munad Mangnare. Today we are going to discuss about another concept of the anatomy of flowering plants, that is tissue systems. Tissue system. In the last class we discussed about what is tissue and which are the different types of tissue found in the plants. Basically, meristematic tissue, simple permanent tissue, complex permanent tissue we are discussed in the last class. Now, the next concept of this chapter is tissue system, and the tissue system consists of different kind of tissue present inside the plant body. Remember that tissue system forms foundation structure, foundation structure in the whole plant body, and we discuss here various type of tissue in the plants based on the types of cell present in it. So on the basis of location, that's it, tissue system divided location and functions. On the basis of location and functions, that tissue system further classified into three types. On the basis of location as well as functions, tissue system further classified into three types. Which are the three types? One is called as epidermal tissue. One is called as epidermal tissue. That means this tissue present on the outside of the plant body is called epidermal tissue. Second tissue is called as ground tissue. What is ground tissue? Fundamental tissue. Actually, this tissue present inside the epidermis and outside the vascular bundle, so called as ground tissue. And third one, the last one, is called as vascular tissue. इस तीन टिश्यू के बारे में हम आज इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं. दिस वेरी बेसिक concept of the chapter and very important for NEET examination point of view. And that's why we discuss this point in the detail. So what is first epidermal tissue? आपको पता है epidermis क्या है? epi outer, dermis layer. प्लांट के बाहर outermost जो लेयर है उसको हम epidermal layer कहते हैं. and in that epidermal tissue आपको पता है epidermis कहाँ पे रहता है? रूट के ऊपर रहता है, स्टेम के ऊपर रहता है, या फिर लीफ के ऊपर रहता है ना. याद रखिए, if the epidermal tissue present on the root is called as root hairs. If the epidermal tissue present on the surface of root is called as root hairs. If the epidermal tissue present on the stem is called as trichomes. And if the epidermal tissue present on the leaf is called as either stomata or cuticle. This is about epidermal tissue classification. ये है epidermal tissue का classification. तो देखते हैं डिटेल में epidermal tissue क्या है. ठीक है, चलिए. So they form complex member of the plant body. So what is epidermal tissue? It is the outermost covering of plant body and direct contact with external environments. epidermal tissue जो है वो सबसे बाहर है प्लांट के बॉडी में और उसका कांटेक्ट आता है किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ. So most of the epidermal tissue are useful in the protection. एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से मोस्टली वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करने के लिए हेल्प होते हैं. जिसमें प्लांट में तो उसमें क्या क्या आता है? epidermal सेल आते हैं. कभी कभी epidermal स्ट्रक्चर आता है स्टोमेटा और epidermal अपेंडेज आते हैं. कौन से? ट्राइकोम एंड हेयर्स. epidermal cell, stomata and epidermal appendage like root hairs and trichomes are called as epidermal appendages. So these epidermis may be single layer. Sometimes they are made up of many layers in the nerium and fucus. Nerium and fucus ये जो दो प्लांट्स है, ये दोनों प्लांट में क्या होता है? फिकस में epidermis जो है मल्टीलेयर रहता है, प्रोटेक्शन करता है. लिविंग है epidermal सेल के अंदर कैसे? epidermal सेल के अंदर के जो सेल है, सपोज मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ. ये स्टेम है, तो स्टेम का सबसे बाहर का जो लेयर है उसको हम epidermis बोलते हैं. तो epidermis का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दे आर नॉट हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस. इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. दूसरा कैरेक्टर
प्रोटेक्शन करता है ये कौन, एपिडर्मल टिश्यू प्लांट को प्रोटेक्शन करता है। और फोर्थ नंबर कैरेक्टर जो है, एपिडर्मल टिश्यू के अंदर जो सेल है वो लिविंग है एंड दैट लिविंग सेल इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमा सेल्स। एपिडर्मिस के अंदर जो लिविंग सेल है उसको हम पैरेन्काइमा सेल बोलते हैं। ओके, एंड आउटसाइड द एपिडर्मिस देयर इज द क्यूटिकल। कभी-कभी मैंने बोला था स्टेम के ऊपर या लीफ के ऊपर एपिडर्मिस के बाहर क्या रहता है, थिन लेयर रहता है किसका, वैक्स का। ओके, एंड दैट वैक्सी लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। क्यूटिकल रहता है कहाँ पे, स्टेम के ऊपर, यंग स्टेम के ऊपर या लीफ के ऊपर। एंड क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटिन। And what is cutin? That is the waxy layer. Waxy substances are deposited in that cuticle, and that waxy substance avoid the loss of water, avoid the transpiration process. They help in the conservation of water in plants. Okay, कौन, क्यूटिकल की वजह से प्लांट में वाटर का कंजर्वेशन होता है एंड क्यूटिकल्स आर एब्सेंट इन द रूट्स। रिमेंबर, क्यूटिकल जो लेयर है, बाहर का लेयर है, रूट के ऊपर नहीं रहता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्यूटिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द हाइड्रोफाइट प्लांट्स। व्हाट आर हाइड्रोफाइट प्लांट्स? ओके, हाइड्रोफाइट मींस वाटर के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स है, दोस प्लांट लिविंग इन द वाटर को हाइड्रोफाइट। ये दोनों जगह पे क्यूटिकल नहीं है। कहाँ पे बोला, एक तो रूट के ऊपर नहीं है और हाइड्रोफाइट के अंदर क्यूटिकल नहीं है। ओके, और आपको ये भी पता होगा लीफ के ऊपर मोनोकॉट लीफ जो है, पता है मोनोकॉट लीफ? मोनोकॉट लीफ के अंदर अगर आप ट्रांसवर्सेशन लेते हो मोनोकॉट लीफ का, ओके, ट्रांसवर्सेशन लेते हो तो याद रखिए ये यहाँ पे दो एपिडर्मिस रहते हैं मोनोकॉट लीफ में, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताने जा रहा हूँ। अपर एपिडर्मिस में क्या होता है, इनसाइड द अपर एपिडर्मिस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल इज कॉल्ड एज ब्यूनिफॉर्म सेल्स। ओके, कहाँ पे बोल रहा हूँ, अपर एपिडर्मिस में। अपर एपिडर्मिस में कहाँ, कौन से लीफ के, मोनोकॉट प्लांट के लीफ में अपर एपिडर्मिस के अंदर स्पेशल टाइप का सेल है एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्यूनिफॉर्म सेल। एंड दैट सेल्स आर जनरली टर्जिड एंड हेल्प इन एक्सपांडिंग ऑफ लीफ। अगर ये ब्यूनिफॉर्म सेल अगर श्रिंक हो गए वाटर के शॉर्टेज की वजह से, वाटर के शॉर्टेज की वजह से ये जो ब्यूनिफॉर्म सेल्स है वो श्रिंक हो गए तो क्या होता है, लीफ का कर्लिंग होता है, लीफ श्रिंक हो जाता है, सूख जाता है, विल्ट हो जाता है। तो इसलिए एपिडर्मल सेल के ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल भी रहते हैं एंड दैट स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज ब्यूनिफॉर्म सेल इन द मोनोकॉट लीफ। अपर एपिडर्मिस के ऊपर रहते हैं। दैट सेल इज आल्सो कॉल्ड एज मोटार सेल। उसी को हम क्या कहते हैं, मोटार सेल भी कहते हैं। ओके, और याद रखिए when the epidermal cells present on the surface of root hairs, ये क्या है, रूट है, और रूट के ऊपर क्या रहता है, ये रूट हेयर है। if the epidermal layer, epidermal cell present around the root hair is called as epiblema। epiblema याद रखिए, epidermis जो है अगर रूट हेयर के ऊपर है तो उसको क्या कहेंगे, epiblema कहते हैं। ओके, epiblema that is present on the root hairs। ओके, और या epiblema का और भी कुछ नाम, दो नाम है। epiblema is also called as what, proliferous layer और rhizodermis, ऐसे दो नाम है ना। तो ये हो गया epidermis layers। now next is stomata। ओके, स्टोमेटा के क्या फंक्शन है, स्टोमेटा क्या करता है, कहाँ पे रहता है? स्टोमेटा इज द नेचुरल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स और यंग स्टेम्स। स्टोमेटा जो है नेचुरल ओपन रहती है, कहाँ पे, लीव्स के ऊपर या यंग स्टेम के ऊपर। एंड रिमेंबर स्टोमेटा हैज, मेनी रहे तो कहेंगे स्टोमेटा और सिंगल रहा तो क्या कहते हैं, स्टोमा। सिंगुलर स्टोमा, मेनी स्टोमेटा कहते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज माइन्यूट ओपनिंग है। ओके, एंड दैट ओपनिंग, ओके, दे आर एब्सेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ रूट्स। अगेन मैंने बोला आपको, जैसे क्यूटिकल नहीं था रूट के ऊपर, क्यूटिकल रूट के ऊपर नहीं था ना, वैसे स्टोमेटा भी रूट के ऊपर नहीं रहते। तो रूट के ऊपर क्या रहता है, फिर लेंटिसेल रहते हैं। स्टोमेटा की जगह पे क्या रहता है, वहाँ पे लेंटिसेल रहते हैं। ओके, और स्टोमेटा के अंदर क्या है, फिर स्टोमेटा के अंदर क्या है, मैं आपके सामने स्टोमेटा की डायग्राम निकाल रहा हूँ। यहाँ पे स्टोमेटा आपको पता है दो तरीके के स्टोमेटा है, डाइकॉट एंड
monocot, dicot and monocot stomata. Dicot stomata has inner cell is called as guard cell. Dicot stomata में अगर देखते हो आप तो जो इनर सेल है उसको क्या कहते हैं हम लोग? गार्ड सेल कहते हैं। क्यों गार्ड कहते हैं? क्योंकि वो प्रोटेक्शन करते हैं ना इसका स्टोमेटल पोर का। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टोमेटल पोर। पोर मींस ओपनिंग, ओके, एंड दिस इज द गार्ड सेल एंड अराउंड द गार्ड सेल के बाहर क्या रहता है? अनदर सेल इज कॉल्ड एज सब्सिडियरी सेल। गार्ड सेल के बाहर कौन है? ओके, और याद रखिए स्टोमेटा की जो है इनर साइड जो है टुवर्ड्स स्टोमेटल पोर इज कॉल्ड एज थिक। स्टोमेटा की इनर साइड कैसी है? थिक है, और बाहर की साइड कैसी है? थिन है, इलास्टिक है। और याद रखिए दैट गार्ड सेल इज जनरली किडनी शेप्ड इन डाइकॉट स्टोमेटा। इन डाइकॉट स्टोमेटा गार्ड सेल इज जनरली किडनी शेप्ड, और बाहर के जो सेल बोला मैंने आपको गार्ड सेल के बाहर के सेल जो स्पेशलाइज रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडियरी सेल। क्या कहते हैं? सब्सिडियरी सेल कहते हैं। गार्ड सेल के बाहर रहने वाले सेल को क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी सेल कहते हैं। और उसके बाहर जो सेल है, सब्सिडियरी सेल के बाहर जो सेल है एंड दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मल सेल। कौन से सेल? एपिडर्मल सेल। समझ आ रहा है ना? तो ये है स्टोमेटा के बारे में। दिस इज डाइकॉट स्टोमेटा। तो मोनोकॉट स्टोमेटा में क्या होता है? फर्क इतना ही है खाली, इन मोनोकॉट स्टोमेटा द गार्ड सेल आर डम्बेल शेप्ड। छोटा सा डिफरेंस है, आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में। मोनोकॉट में क्या होता है? व्हाट हैपन इन मोनोकॉट? द गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप्ड। बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, ये जो गार्ड सेल है मोनोकॉट में क्या होता है? डम्बेल शेप्ड है, और इधर डाइकॉट में क्या होता है? गार्ड सेल जो है वो किडनी शेप्ड है। ये बेसिक डिफरेंस है किसके अंदर? डाइकॉट स्टोमेटा के अंदर और मोनोकॉट स्टोमेटा के अंदर। ये है डिफरेंस। ओके, तो स्टोमेटा के अंदर क्या क्या है फिर? बी शेप्ड और किडनी शेप्ड गार्ड सेल है और स्टोमेटल पोर है ना, और टुगेदरली कॉल्ड स्टोमेटा। गार्ड सेल का मैंने आपको बोला ओपनिंग को प्रोटेक्शन करते हैं, इसलिए उसको गार्ड कहा गया है। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने की हेल्प करते हैं। गार्ड सेल हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम दैट गार्ड सेल बिकम टर्जिड, वो स्वेल हो जाते हैं कब? डे टाइम में। और जब गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है, और नाइट में क्या होता है? गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं, स्विवेल हो जाते हैं, इसलिए नाइट को स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई गार्ड सेल्स आर हैविंग different functions in the stomata. Okay, and wall of the guard cell has two nature. outer जो wall मैंने आपको बोला गार्ड सेल की कैसी है? थिन है, और इनर वॉल कैसी है? थिक है। ओके, बाकी के पार्ट मैंने आपको बताया। गार्ड सेल के अंदर आपको बताया मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर जो है, डॉटेड स्ट्रक्चर वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प करते हैं। कौन? गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ओके, फंक्शन क्या है गार्ड सेल का? दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय टर्जिड। दिन में टर्जिड हो जाते हैं, स्वलन हो जाते हैं, एंड नाइट में श्रिंक हो जाते हैं, स्विवेल हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं ना। ओके, बाद में सब्सिडियरी सेल क्या है? सब्सिडियरी सेल मतलब गार्ड के सेल के बाहर का सेल है, प्रोटेक्शन करता है गार्ड सेल को, उसी को कहते हैं एक्सेसरी सेल। और वो सपोर्ट करते हैं किसको? गार्ड सेल को सपोर्ट करते हैं। ओके, और याद रखिए सब्सिडियरी सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है ना, सब्सिडियरी सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। ओके, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? मैंने आपको बोला है स्टोमेटा के बेसिकली दो फंक्शन है। एक ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू अ स्टोमेटा इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ये पहला फंक्शन है। और दूसरा जो फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट O2 एंड CO2। आपको पता होगा ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट में CO2 आता है और O2 निकल जाता है, और नाइट में प्लांट में रिस्पिरेशन होता है तो नाइट में क्या करते हैं प्लांट्स? O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इसका मतलब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो ये दो फंक्शन है स्टोमेटा के, पहला है ट्रांसपिरेशन और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, इसके स्टोमेटा के दो फंक्शन है। ठीक है, आपको पता है ये। और
स्टोमेटा जो है उसका नंबर जो है आपको पता होगा, नंबर ऑफ स्टोमेटा आर इक्वल ऑन द बोथ सरफेस ऑफ मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ आपको पता होगा, उसको हम आइसोबायलैटरल लीफ कहते हैं। मोनोकॉट लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा का जो नंबर है अपर एपिडर्मिस में और लोअर एपिडर्मिस में सेम है ना। मोनोकॉट लीफ में नंबर ऑफ स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस के ऊपर और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर सेम है, इसलिए उसको कहते हैं आइसोबायलैटरल लीफ। और डाइकॉट लीफ में क्या होता है, इन डाइकॉट लीफ व्हाट हैपन, नंबर ऑफ स्टोमेटा मोर ऑन द लोअर सरफेस ओनली। डाइकॉट लीफ में क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा मोर ऑन द लोअर एपिडर्मिस ओनली। ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। एंड यू नो व्हाट इज stomatal apparatus? Stomatal apparatus consists of, remember stomatal apparatus में क्या क्या आता है, पहला stomatal apparatus consists of guard cell, subsidiary cell and stomatal, okay, guard cell, subsidiary cell and stomatal pore। stomatal pore एक, guard cell दो और subsidiary cell तीन, ये तीनों को मिला के क्या कहते हैं, stomatal apparatus, and that help in the process of transpiration exchange of gases। okay, और बाद में मैंने आपको बोला ये जो एपिडर्मल अपेंडिज है उसको बोलते हैं हम लोग रूट हेयर एंड ट्राइकोम। मैं आपको सिंपली डिफरेंस बताता हूं दोनों में, बहुत इजी है। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स एंड ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ स्टेम। ये होगा पहला डिफरेंस। रूट हेयर हेल्प इन द वाटर अब्जॉर्प्शन एंड ट्राइकोम हेल्प इन द वाटर प्रोटेक्शन ऑफ स्टेम एंड अवॉइड द वाटर लॉस। ट्राइकोम क्या है, वाटर लॉस अवॉइड करते हैं। ये कैसा यूनिसेलुलर है, ये कैसा है मल्टीसेलुलर है, ये कैसा अनब्रांच्ड है, ये कैसा है ब्रांच्ड है, या कभी कभी सिलिंड्रिकल में रहता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गई। ओके, किसके अंदर, रूट हेयर के अंदर और ट्राइकोम के अंदर। और ट्राइकोम क्या करता है, स्टेम के ऊपर रहने की वजह से मल्टीसेलुलर है और प्रिवेंट करता है क्या, वाटर लॉस, या फिर प्रोटेक्शन भी करता है किसका, स्टेम का, कौन, ट्राइकोम्स। और एक बात आपको याद रखना है, ट्राइकोम हैज सम secretory cells which help in the secretion of sticky substance and protecting the plants from injury। इंजुरी से प्रोटेक्शन करता है प्लांट्स, ट्रैपिंग करता है इंसेक्ट वगैरह, ठीक है। ओके, ओवरऑल एपिडर्मल टिश्यू का फंक्शन क्या है, फिर ओवरऑल एपिडर्मल टिश्यू हमने स्टडी किया है, उसका फंक्शन क्या है। नो डाउट पहला तो फंक्शन आपको बताया प्रोटेक्शन है। ओके, सबसे बाहर रहने की वजह से, इंजुरी से, इवैपोरेशन से प्रोटेक्शन करता है। दूसरा फंक्शन है सिक्रेशन, ट्राइकोम के अंदर से क्या होता है, सिक्रेशन होता है। ओके, दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है इसका, थर्ड फंक्शन इज गैसेशन। मैंने आपको बोला जस्ट स्टोमेटा क्या करता है, गैसेशन करता है। ओके, स्टोमेटा का और क्या एक फंक्शन है, दे हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन आल्सो, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और लास्ट जो फंक्शन है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। आपको पता होगा रूट हेयर जो है वो वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये है पूरे फंक्शंस किसके, एपिडर्मल टिश्यू के। नाउ एपिडर्मल टिश्यू के बाद सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू जो है दैट इज ग्राउंड टिश्यू। आपको मैंने बोला एपिडर्मल टिश्यू में लग कर रहा हूँ, इसके तीन टाइप बताया मैंने आपको, रूट के ऊपर अलग है, स्टेम के ऊपर अलग है और लीफ के ऊपर अलग था। ओके, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, ग्राउंड टिश्यू के बारे में। ये भी बहुत इजी है। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ग्राउंड टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू है जिसको हम फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं। फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं क्योंकि इसी टिश्यू से मोस्ट ऑफ द प्लांट का पार्ट बनता है ना, इसलिए उसको फंडामेंटल कहा गया है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है प्लांट का वो इससे बनता है, इसलिए उसको फंडामेंटल कहते हैं। और रूट में और स्टेम में जो है इसके कौन कौन से पार्ट आते हैं फिर रूट में, स्टेम में। ओके, जनरली हाइपोडर्मिस आता है। हाइपोडर्मिस में क्या क्या आता है, ओके, हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, ओके, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल है, ओके, मिडुलरी रे है, मिडुलरी रे है, और सबसे लास्ट पिथ है। ये सभी पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राउंड टिश्यू ऑफ द रूट एंड स्टेम। ओके, रूट और स्टेम के अंदर ये ग्राउंड टिश्यू है। और लीफ के अंदर अगर देखते हो आप, लीफ के अंदर का जो ग्राउंड टिश्यू है उसको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल। बहुत इजी है, लीफ के अंदर
जो मेसोफिल सेल है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। ये क्वेश्चन नीट को आया था, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन द लीफ, तो इसका नाम याद रखिए मेसोफिल सेल इन द ग्राउंड टिश्यू इन लीफ। ओके, चलिए देखते हैं ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या है। मेन टिश्यू है, बल्कि टिश्यू है। ओके, सिंपल। और याद रखिए ग्राउंड टिश्यू के अंदर कौन से सेल रहते हैं, पैरेन्कामा, कोलेन्कामा, स्टेरेन्कामा, ये जो सेल है उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, फिल होते हैं कहाँ पे, ग्राउंड टिश्यू के अंदर। और ये आउटर कॉर्टेक्स से लेके सेंट्रल पिथ तक रहता है। ग्राउंड टिश्यू जो है रूट में और स्टेम में कहाँ रहता है, कॉर्टेक्स के लेके बाहर क्या रहता है, कॉर्टेक्स, वहां से लेके पिथ तक रहता है। और आपको मैंने सिंपली बताया ग्राउंड टिश्यू मतलब इपिडर्मल टिश्यू को छोड़ दीजिए और वास्कुलर बंडल को छोड़ दीजिए, बाकी का जितना भी पार्ट है वो सभी पार्ट ग्राउंड टिश्यू में आता है। ये बहुत इजी है ट्रिक समझने के लिए। ओके, तो कॉर्टेक्स के लेके सेंट्रल पिथ तक इसका अरेंजमेंट रहता है। ओके, और जोनेशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू जो है, जोनेशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू, जोनेशन मतलब लेयर्स, ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन से लेयर रहते हैं, ये इपिडर्मल टिश्यू का मैं आपको थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। ओके, अगर आप स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन लेते हो, टीएस ऑफ स्टेम लेते हो, टीएस ऑफ स्टेम, तो आपको पता होगा सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मल टिश्यू है, उसके अंदर क्या है, कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या रहता है बेटा, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ, ओके, ये है सबसे बाहर कौन, एपिडर्मिस। स्टेम के अंदर सबसे बाहर कौन था, एपिडर्मिस था, और उसके अंदर क्या है, हाइपोडर्मिस है या कॉर्टेक्स है। ओके, और कॉर्टेक्स में क्या क्या आता है, फिर कॉर्टेक्स में सबसे बाहर आता है हाइपोडर्मिस। ओके, उसके बाद क्या आता है, हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस के बाद क्या आता है, जनरल कॉर्टेक्स, और उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर जो बैरल सेप्टर सेल रहते हैं उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस याद रखिए, इसलिए हाइपोडर्मिस को, जनरल कॉर्टेक्स को और एंडोडर्मिस को, ये तीनों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स कहाँ पे आया, कॉर्टेक्स कहाँ पे आया, ग्राउंड टिश्यू में आया एक। उसके बाद एंडोडर्मिस के अंदर क्या रहता है, ये पैरेन्कामा सेल से बनता है, उसको बोलते हैं पेरिसाइकल, पेरिसाइकल बोलते हैं। ओके, पेरिसाइकल। और उसके अंदर क्या रहता है, फिर वास्कुलर बंडल रहते हैं ना, उसके अंदर कौन है, ये वास्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम है ना। ओके, और आपको ये भी पता होगा, ओके, ये सबसे अंदर का जो पार्ट है वो है पिथ, वो है पिथ, और ये दोनों के अंदर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मिडुलरी रे, मिडुलरी रे। तो इसका मतलब ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आया, ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आया, सबसे बाहर कॉर्टेक्स, उसके अंदर क्या था, एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, देन मिडुलरी रे एंड देन पिथ। ये पूरे पार्ट आते हैं कहाँ पे, ग्राउंड टिश्यू में। ओके, ग्राउंड टिश्यू के अंदर ये पूरे पार्ट्स आपको मिलते हैं। ओके, सो हाइपोडर्मिस जो है, हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन द रूट्स। हाइपोडर्मिस नाम का जो पार्ट है याद रखिए, हाइपोडर्मिस जो है वो रूट में एब्सेंट है और स्टेम में प्रेजेंट है। हाइपोडर्मिस रूट में एब्सेंट है, और आपको मैंने बोला था स्टेम के अंदर जो हाइपोडर्मिस बनता है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनसाइड द स्टेम, इन डाइकॉट स्टेम हाइपोडर्मिस इज कोलेन्काइमेटस, कल पढ़ाया मैंने आपको, और इन मोनोकॉट स्टेम हाइपोडर्मिस इज स्टेरेन्काइमेटस। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस है जो कोलेन्काइमा से बनता है, और मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो स्टेरेन्काइमा से बनता है, स्टेरेन्काइमेट टिश्यू। ये है डिफरेंस बिटवीन द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। ओके, आपको पता है ये। और कभी कभी ये हाइपोडर्मिस सेल के अंदर अगर पैरेन्काइमा सेल रहे तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, कौन, हाइपोडर्मिस। जनरल कॉर्टेक्स में क्या आता है, जनरल कॉर्टेक्स में जनरली पैरेन्काइमा सेल आते हैं और वो उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस में रहते हैं, इसलिए वो उसका काम क्या है, एक तो फूड स्टोर करना, या फिर फोटोसिंथेसिस करना, या फिर मैकेनिकल सपोर्ट करना। कौन, जनरल कॉर्टेक्स जो है इसके अंदर पैरेन्काइमा सेल रहते हैं, इसकी वजह से वो फूड स्टोर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं कभी कभी, या फिर मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। कौन, हाइपोडर्मिस के, जनरल कॉर्टेक्स के अंदर की सेल जो है वो। और नेक्स्ट एंडोडर्मिस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंडोडर्मिस। ओके, मैंने आपको बोला एपिडर्मिस के अंदर क्या था, हाइपोडर्मिस था, उसके अंदर क्या है, जनरल कॉर्टेक्स है, और उसके अंदर कौन है, एंडोडर्मिस है। याद रखिए एंडोडर्मिस का फंक्शन इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये जो एंडोडर्मिस है वो स्टेम में अलग बिहेव करता है, रूट में अलग बिहेव करता है। कैसे करता है हम देखते हैं बाद में। ओके, उसका डायग्राम मैं आपको निकाल के दूंगा बाद में इधर। ओके, सो एंडोडर्मिस जो है वो अलग बिहेव करता है। एंडोडर्मिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द जनरल कॉर्टेक्स। ओके, एंड एंडोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ या इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज स्टील। याद रखिए। ओके, मैंने क्या बोला आपको, सबसे बाहर कौन था, सबसे बाहर कौन था, एपिडर्मिस, उसके बाद कौन था, हाइपोडर्मिस, उसके अंदर कौन था ये, हाइपोडर्मिस के अंदर कौन था ये, ओके, जनरल कॉर्टेक्स, ये क्या है, दिस इज जनरल कॉर्टेक्स, और उसके अंदर ये कौन है, ये उसके अंदर ये कौन है, दैट इज एंडोडर्मिस, ये था जनरल कॉर्टेक्स। ओके, और इसके अंदर कौन है, एंडोडर्मिस। और याद रखिए ये तीनों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग, ये तीनों को मिला क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं ना। एंडोडर्मिस जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि स्टेम के अंदर जो एंडोडर्मिस है वो सिंपल है, मगर अगर रूट के अंदर एंडोडर्मिस रहा और रूट के अंदर का एंडोडर्मिस जो है उसके अंदर क्या रहता है आपको पता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप रहती है, पता होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप रहती है कहाँ पे, और रूट के अंदर का जो एंडोडर्मिस है उसके अंदर क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है। और उस कैस्पेरियन स्ट्रिप में क्या रहता है, ये केमिकल रहता है, कौन सा, सुबेरिन। और वो सुबेरिन क्या करता है, चेक पॉइंट बोल के काम करता है, कंट्रोल पॉइंट बोल के काम करता है। दे आर इम्परमेबल टू वाटर, इम्प्रेस टू वाटर, कौन, रूट के अंदर जो एंडोडर्मिस है उसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर सुबेरिन है, और वो वाटर को चेक करता है, कंट्रोल करता है अंदर जाने के लिए, कहां पे, वास्कुलर बंडल में जाने के लिए। और एंडोडर्मिस के अंदर आपको पता होगा ये कौन है, पेरिसाइकल है। एंडोडर्मिस के अंदर क्या है ये, एंडोडर्मिस के अंदर कौन है ये, पेरिसाइकल है। और पेरिसाइकल याद रखिए, जितना भी पार्ट एंडोडर्मिस के अंदर का है ना, एंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी पार्ट है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। व्हाट इज स्टील, स्टील का, स्टील में क्या क्या आता है, पेरिसाइकल एक, पेरिसाइकल एक, मेडुलरी रे दो, ओके, और पित्त, पित्त भी आता है ना, पित्त, और उसके अंदर वास्कुलर बंडल भी आता है, कहाँ पे, स्टील के अंदर। मतलब एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यू है उन सभी को हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, STELE, क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। ओके, और एंडोडर्मिस जो है कभी कभी सिंगल लेयर बनता है, पैरासेप्टर सेल रहते हैं इसके अंदर। ओके, एंड सम टाइम एंडोडर्मिस आर लिविंग और कंटेन स्टार्च। ओके, कभी कभी एंडोडर्मिस के अंदर लिविंग रहता है और स्टार्च रहता है, इसको कहते हैं स्टार्ची, स्टार्ची एंडोस्पर्म कहते हैं, या स्टार्ची सीड कहते हैं, स्टार्ची सीड कहते हैं इसको। एंडोडर्मिस के अंदर अगर स्टार्च रहा तो उसको क्या कहते हैं, स्टार्ची एंडोडर्मिस कहते हैं। ओके, डाइकॉट स्टेम में रहता है स्टार्ची एंडोडर्मिस, डाइकॉट स्टेम के अंदर स्टार्ची एंडोडर्मिस आपको मिलता है। ओके, और कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है, मैंने आपको बोला, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ये कैस्पेरिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। कैस्पेरिन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिसने ये डिस्कवर किया, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और उसके अंदर क्या रहता है, लैटरल वॉल में और टैंजेंशियल वॉल में सुबेरिन डिपॉजिट होता है, और वो सुबेरिन क्या करता है, वाटर को एंट्री नहीं करने देता। ओके, रेडियल एंड टैंजेंशियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ सुबेरिन, एंड सुबेरिन कंट्रोल द वाटर एंट्री इन द सेल। और एक बात आपको याद रखना है, जहां पे एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर आपको पता होगा रूट में क्या होता है, वास्कुलर बंडल आपको कल बताया था मैंने, कैसे रहता है रूट में वास्कुलर बंडल, कैसा है, एक्सार्च है ना, कैसा है, एक्सार्च है। तो इसका मतलब प्रोटोथैलम कहाँ रहता है, बाहर रहता है, कहाँ पे, रूट में बोला मैंने आपको। तो जहाँ पे प्रोटोथैलम है उसके अपोजिट एक सेल रहते हैं, स्पेशल सेल, दैट इज कॉल्ड एज पैसेज सेल। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, और रूट के अंदर प्रोटोथैलम के अपोजिट साइड में स्पेशल टाइप के सेल रहते हैं, एंड दैट स्पेशल टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज पैसेज सेल, पैसेज सेल रहते हैं, एंड दैट पैसेज सेल हेल्प इन द, इस पैसेज सेल की वजह से क्या होता है, वाटर एंट्री करता है, कहां से, कॉर्टेक्स से स्टील के अंदर, वास्कुलर बंडल के अंदर एंट्री करता है। पैसेज सेल में रहते हैं कहां पे, रूट के अंदर, जहां पे प्रोटोथैलम के अपोजिट पैसेज सेल रहते हैं।
ओके। और पेरिसाइकिल क्या है, थिन वॉल्ड है, कभी कभी थिक वॉल है। आपको बोला था मैंने पेरिसाइकिल का क्या फंक्शन है, पेरिसाइकिल हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज वेल एज पेरिसाइकिल, ओके, पेरिसाइकिल इज नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, पेरिसाइकिल इज नॉट प्रेजेंट इन द मोनोकॉट स्टेम। क्यों? क्योंकि आपको पता है मोनोकॉट स्टेम में लैटरल रूट नहीं आते ना, मोनोकॉट स्टेम में लैटरल रूट नहीं आते, क्योंकि आपको पता होगा इस पेरिसाइकिल से क्या आते हैं, दैट पेरिसाइकिल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स, प्राइमरी सेकेंडरी रूट टर्शियरी रूट आते हैं ना, and that secondary root and tertiary roots are absent in the monocot roots। और याद रखिए पेरिसाइकिल जो है absent है, कहाँ पे absent है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल्स are absent in the monocot stem also, okay, and monocot root also, monocot root में तो नहीं रहता है। और पेरिसाइकिल का फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट करना, फूड स्टोरेज करना, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है जिसके लिए सेकेंडरी वॉल करने के हेल्प करते हैं। और डाइकॉट रूट में, इन डाइकॉट रूट पेरिसाइकिल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स। डाइकॉट रूट में पेरिसाइकिल की वजह से क्या बनते हैं, लैटरल रूट फॉर्मेशन होते हैं। सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट्स आर हेल्प इन द फॉर्मेशन बाय पेरिसाइकिल, ओके। सो दिस इज अबाउट पेरिसाइकिल। एंड पिथ क्या है, पिथ जो है, पिथ को और एक नाम है मिडुला। पिथ इज आल्सो कॉल्ड एज मिडुला एंड मिडुला हेल्प इन द, या मिडुला के अंदर क्या रहता है, पैरेंकाइमा सेल रहते हैं। इनर मोस्ट जो पार्ट है वो पिथ है, कभी पिथ प्रेजेंट रहता है, कभी पिथ एब्सेंट रहता है, ओके। और दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट रेज। एंड लास्ट इज पिथ रेज। पिथ रे मतलब क्या है, दो वस्कुलर बंडल के अंदर, दो वस्कुलर बंडल के अंदर जो गैप है ना, द गैप बिटवीन टू वस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज पैरेंकाइमा सेल एंड दैट पैरेंकाइमा सेल इज कॉल्ड एज पिथ रेज। पिथ से आने वाले रेज जो है, जो दो वस्कुलर बंडल के अंदर आपको मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पिथ रेज बोलते हैं, ओके। पिथ रेज आर प्रेजेंट इन सम ऑफ द प्लांट्स, ओके। एक्सटेंशन होता है दो वस्कुलर बंडल के अंदर, उसी को हम बोलते हैं पिथ रे, या उसी को हम दूसरा नाम देते हैं मिडुलर रे। पिथ रे को क्या बोलते हैं, मिडुलरी रे भी बोलते हैं। और लार्ज जो पार्ट है टिश्यू ग्राउंड, किसका, टिश्यू सिस्टम का लार्ज जो पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, दैट इज vascular tissue। what is vascular tissue? they are made up of vascular bundles। vascular tissue में क्या रहता है, vascular bundle है, आपको पता है vascular bundle में क्या है। और आपको मैंने बताया ground tissue in the leaf is called as mesophyll cell, याद रखना है, ground tissue in the leaf is called as mesophyll cell रहते हैं, ओके। बाद में vascular tissue में क्या है, vascular tissue में vascular bundle है, xylem है, phloem है। xylem क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है, phloem क्या करता है, फूड कंडक्ट करता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ओके। उसके एलिमेंट भी आपको मैंने बताया, सर्कुलेशन करते हैं किसमें, प्लांट में, और उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सर्कुलेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल इन द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन करने के लिए हेल्प करते हैं टिश्यू में, xylem एंड phloem, ओके। और वस्कुलर बंडल जो है वेरिंग नंबर उसका चेंज होता है, ओके। इन मोनोकॉट स्टेम ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिस्टिंग्विश इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ। वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। आपने देखा होगा वस्कुलर बंडल जो है मोनोकॉट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल है वो कैसे रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं। स्कैटर्ड मतलब इसमें यहाँ पे, ओके, ग्राउंड टिश्यू वगैरह कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस ऐसा नहीं है, स्कैटर्ड रहते हैं। कहाँ पे, मोनोकॉट स्टेम में। इन मोनोकॉट स्टेम वस्कुलर बंडल्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ, ओके, दे आर स्कैटर्ड, ओके। एंड डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, जो वस्कुलर बंडल्स है वो सर्कल में अरेंज होते हैं ना, रिंग में अरेंज होते हैं। इन डाइकॉट स्टेम वस्कुलर बंडल्स अरेंज इन द पर्टिकुलर रिंग। ये दोनों में डिफरेंस है, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम के अंदर सर्कल में अरेंज होते हैं और वो ट्रांसलोकेशन करते हैं फूड का। जाइलम में क्या है, जाइलम में आपको बताया था, जाइलम में दो टाइप है, एंडार्च एंड डिस्चार्ज। आपको कल ही बताया मैंने। एंडार्च का मतलब क्या है, एंडार्च का मतलब क्या है, जब प्रोटोथैलम सेंटर को है ना और मेटाथैलम बाहर, उसको एंडार्च बोलते हैं। और एंडार्च कहाँ पे रहता है, स्टेम में रहता है। ये कल ही होता है मैंने आपको एंडार्च, कल हमने डिस्कस किया, मैं सिर्फ रिपीट नहीं करूंगा मैं। और एंडार्च में क्या होता है आपको बताना है, एंडार्च में क्या होता है, ओके, क्या होता है एंडार्च में, प्रोटोथैलम जो है वो बाहर अंदर है ना, कौन, प्रोटोथैलम जो है अंदर है, तो यहाँ पे एंडार्च में तो डेवलपमेंट रेशियो है उसका बंडल की,
प्रोटोजाइलम सेंटर तो है उसको हम एंडार्च बोलते हैं, और डेवलपमेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। ओके, एंडार्च जब रहता है तो क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है, सेंटर टू पेरिफेरी ना। जाइलम का डेवलपमेंट कैसे होता है, अंदर से बाहर होता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। कब, स्टेम के अंदर एंडार्च मुस्कुलर बंडल रहा तो, और रूट में उसके अपोजिट होता है। रूट में क्या होता है, रूट में क्या होता है, प्रोटोजाइलम कहाँ रहता है, रूट में प्रोटोजाइलम जो है बाहर रहता है ना, कहाँ पे, रूट में प्रोटोजाइलम बाहर है और उसको हम बोलते हैं एक्सार्च। तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे है जाइलम की, यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे है जाइलम की, दैट इज सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल है कहाँ पे, रूट के अंदर। तो ये है जाइलम का अरेंजमेंट्स रूट और स्टेम के अंदर। फ्लोएम क्या करता है आपको पता है, फुटमोटल कंडक्ट करता है। ओके, फ्लोएम के अंदर फाइबर भी है, और फ्लोएम फाइबर्स मोनोकॉट प्लांट में वगैरह एब्सेंट है, मैंने अगर बोला आपको। ओके, कंपेनियन सेल भी है फ्लोएम के अंदर, पैरेंकामा है एटसेट्रा, एंड फ्लोएम पैरेंकामा एब्सेंट इन द मोनोकॉट प्लांट। कल ही बताया मैंने, फ्लोएम पैरेंकामा एब्सेंट इन द मोनोकॉट प्लांट्स। ओके, ये कैरेक्टर है। कैम्बियम क्या है, कैम्बियम एक ऐसा रिंग है, डाइकॉट प्लांट में रहता है कैम्बियम रिंग, उसको हम मस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। और उसके कैम्बियम के और दो टाइप है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। दोनों से क्या बनता है, कैम्बियम रिंग बनता है ना। और कैम्बियम इज नथिंग बट सेकेंडरी मेरिस्टेम, हेल्प करता है इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ स्टेम्स। कैम्बियम की वजह से क्या होता है, स्टेम की या रूट की डायमीटर बढ़ती है। ओके, और विद इन द मस्कुलर बंडल रहा तो इंट्राफैसिकुलर कहते हैं। ओके, और प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम जनरली फाउंड इन द, कैम्बियम प्रेजेंट कहाँ रहता है, कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द डाइकॉट प्लांट्स। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट मस्कुलर बंडल में हम क्या करेंगे, दो टाइप बनाएंगे। कौन से, दैट इज वन इज कंजॉइंट, ओके, एंड सेकंड इज रेडियल। सेकंड इज रेडियल। ओके, कंजॉइंट में और दो टाइप है, वन इज ओपन एंड अदर इज क्लोज। ओपन टाइप ऑफ मस्कुलर बंडल फाउंड इन द डाइकॉट प्लांट्स, and closed type of muscular bundle found in the monocot plants, and radial muscular bundle found in the roots. Compulsory, radial type of muscular bundle found in roots, conjoined muscular bundle found in the stem or leaf. और conjoined open रहा तो dicot है, conjoined close रहा तो monocot है। ओके, conjoined open है मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, जो muscular bundle है आपको पता होगा, ये क्या है, फ्लोएम है, और ये क्या है, जाइलम है। और दोनों के अंदर क्या रहता है, अगर कैम्बियम रिंग रहा तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। और मोनोकॉट में क्या होता है, ये अंदर जाइलम है और बाहर फ्लोएम है, मगर नो कैम्बियम ना, कैम्बियम एब्सेंट है, इसीलिए उसको क्लोज कहते हैं। और रेडियल में क्या होता है, मस्कुलर बंडल जो है वहां पे ऐसे अरेंजमेंट होती है मस्कुलर बंडल की। ओके, कैसे होते हैं, मैंने आपको बोला था, रूट में एक तो एक्सार्च कंडीशन है, और यहाँ पे ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट रहते हैं ना। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम एक सेम रेडियस में है, जाइलम और फ्लोएम की सेम रेडियस कॉल्ड एज कंजॉइंट। और अगर जाइलम और फ्लोएम का अलग अलग रेडियस है, दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियल टाइप ऑफ मस्कुलर बंडल बोलते हैं। रेडियल टाइप ऑफ मस्कुलर बंडल फाउंड इन द रूट्स। ओके, सो ये हो गया ओपन मस्कुलर बंडल एंड क्लोज मस्कुलर बंडल। ओपन कहाँ पे रहता है बोला मैंने आपको, डाइकॉट में रहता है। क्लोज कहाँ पे रहता है, मोनोकॉट में रहता है। और अगर क्लोज रहा तो उसके अंदर कैम्बियम नहीं है। ओके, रिलेटिव पोजीशन जो उसकी, रेडियल मस्कुलर बंडल आप देखते हो तो उसमें जाइलम और फ्लोएम के अलग अलग रेडियस है, इसलिए वो एक दूसरे को अल्टरनेट है और वो रूट में अंदर रहते हैं। और कंजॉइंट अगर देखते हो तो जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस में, और कंजॉइंट कहाँ पे मिलता है आपको, स्टेम में मिलता है। कहाँ मिलता है, स्टेम में और लीफ में भी मिलता है। ओके, कंजॉइंट, और कंजॉइंट में ओपन जो रहा ओपन, और यहाँ देखिए लीफ में जो है, लीफ के अंदर कंजॉइंट रहता है मगर क्लोज रहता है, लीफ के अंदर क्लोज, क्योंकि लीफ के अंदर कैम्बियम रिंग नहीं है। नो कैम्बियम रिंग इज नो सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द लीफ। ओके, क्लोज रहता है लीफ के अंदर। सो इन दिस वे डाइकॉट में अगर देखते हो और मोनोकॉट में देखते हो तो ये डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, और इसकी डायग्राम में मैं दूंगा आपको डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
Now today we will discuss about tissue tissue point in detail, and have a good day to all of you. Thank you. The body of a plant consists of various types of cells which form different types of tissues. The structure and function of these tissues depend entirely on where they are located inside a plant. Therefore, based on this, plant tissue systems can be classified into three types: epidermal tissue system, ground or fundamental tissue system, and vascular or conducting tissue system. Let's begin by studying the epidermal tissue system. As the name suggests, this tissue forms the outermost covering of the plant body. It consists of epidermal cells, stomata, and epidermal appendages, including trichomes and hairs. Epidermis refers to the outermost layer of the primary plant body. It is a continuous layer of elongated and compactly arranged cells. Epidermal cells are parenchymatous in nature, and their cell walls are lined with a small amount of cytoplasm that has a large vacuole. The outer layer of the epidermis is coated with a thick and waxy layer called the cuticle, which prevents the loss of water. Stomata are present in the epidermis of the leaves. They regulate the process of transpiration and gaseous exchange. Each stoma consists of two bean-shaped cells called guard cells. Guard cells contain chloroplasts and regulate the opening and closing of a stoma. In grasses, the guard cells are dumbbell-shaped. The outer walls of the guard cells, which are away from the stomatal pore, are thin, while the inner walls, which are towards the stomatal pore, are very thick. When the epidermal cells associated with the guard cells become specialized in shape and size, they are known as subsidiary cells. The stomatal aperture, guard cells, and the surrounding subsidiary cells are collectively called stomatal apparatus. The epidermal tissue has epidermal appendages such as hair and trichomes. The root hairs are unicellular elongations of the epidermal cells, and they help absorb water and minerals from the soil. The epidermal hairs on the stem are known as trichomes. They may be branched, unbranched, soft or stiff, and may also be secretory in function. Besides this, trichomes prevent loss of water due to transpiration. The second type of tissue system is the ground tissue system. The ground tissue in primary stems and roots consists of parenchymatous cells found in the cortex, pericycle, pith, and medullary rays. In the leaves, ground tissue is composed of thin-walled chloroplast-containing cells, collectively called mesophyll. Let's now study the third type of tissue system, the vascular tissue system. It is composed of complex tissues, namely xylem and phloem,
which together form vascular bundles. In the vascular bundles of dicotyledonous plants, cambium is present between the phloem and xylem. Due to the presence of cambium, such vascular bundles can form secondary xylem and phloem tissues and are known as open vascular bundles. On the other hand, in monocotyledonous plants, vascular bundles do not contain cambium. They are unable to form secondary xylem and phloem tissues and are thus called closed vascular bundles. There are two types of vascular bundle arrangements: radial and conjoint. The radial arrangement is generally found in roots, where the xylem and phloem in a vascular bundle are arranged in an alternate manner at different radii. In the conjoint arrangement found in stem and leaves, the xylem and phloem are situated at the same radius of the vascular bundles. The conjoint vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem. In the conjoint open arrangement, the cambium is present between the xylem and phloem, while in the conjoint closed arrangement, the cambium is absent. The plant body has an intricate arrangement of various tissue systems that aid its growth and development.